Hello students, this is Karan Singh. Welcome back to the class. In today's lecture of mathematics, we will be continuing with the chapter surface area and volume, chapter number 13. In the last class, we saw two exercises. One exercise was based on the formula of cuboid and cube, okay, and in the other exercise, we have the formula of cylinder. So we are having almost 8 exercises in our chapter, and the 4 exercises, basically the 4 exercises are of area, and the next 4 exercises are of volume. So this is how the content has been distributed. So first of all, we are talking about areas, and I told you that always write down the formula. Always write down the formula. Make a page. I am telling you this thing again. Listen to my words very carefully. And always when you are making a maths notebook, leave 3-4 pages, okay, on the first, from the beginning itself. On that 3-4 pages, start writing the formulas as you come across. For example, like for the first chapter, okay, if there is any formula, write it down. For the second chapter, if there is any formula, write it down. Then in the third, if you get, write it down. So likewise, at the end, when you will be revising or you will be just practicing those things, so at one place you will have all the formulas and content, and you will not have any kind of problem in revising or studying. So keep this thing in mind while preparation. There is always planning by the students that helps them to prepare well. So now let's start with the chapter. In the first chapter, first exercise, we have cuboidal formula, total surface area of the cuboid. This is the total surface. After that, we are having based on cylinder. I believe in explaining the formulas. That's why I explained you the formulas in detail, that how they came. Because once you are done with the formulas, you have to just put the values. Now there is nothing. So now let's come to the next topic, that is surface area of a right circular cone. Now let's talk about cone first. Let's talk about cone. So pay attention very properly in order to understand the formula. In cone is of this kind of structure. Cone is of this kind of structure. Now this is the radius r, and like this the perpendicular distance, this is height, and this distance is basically known as L, the slant height. Okay, height, radius, and the slant height. Okay, fine. Now this is the radius, is the slant height. Now what will be the formula? First of all, the first thing that comes is curved surface area, CSA. Why CSA? Because you can see here that cone is also having the curved area, like the birthday cap. You have seen a birthday cap, the outer curved area, CSA. The formula for CSA is pi RL. Okay, now L. You know what? Actually, this is the height, but in cone, this is the length. This length is basically known as slant length, okay, or slant height. So this is the L, okay, because आप देखिए तो इसी के about cone revolve होता है, उसी slant height के about, तो इसलिए L का measurement ज़रूरी है. तो pi RL हो गया आपका. अब किसी ने बोला कि TSA निकालो. TSA मतलब क्या? कोन को नीचे से ढक दो, cover it up.
तो ढक्कन बंद, लाइक आप आइसक्रीम का कोन खरीदते हैं तो ऊपर एक स्टिक लेबल जैसा लगा होता है, क्या एक ढक्कन जैसा लगा होता है. ओके, सो इन दैट केस क्या करोगे आप कर्व्ड सरफेस एरिया में ये ऐड करोगे और ये पोर्शन कैसा होगा, सर्कुलर. तो आपको क्या करना पड़ेगा टी से निकालने के लिए, आपके कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल में आपको ऐड करना पड़ेगा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये पार्ट सर्कुलर है. तो आप इसको ऐड करेंगे. अब ऐड करके आप देखिए यहीं पे इसमें यही सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं हमेशा कॉमन लेने को क्यों कहता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है. द कैलकुलेशन बिकम सिंपल व्हेन यू टेक कॉमन और रिड्यूस द फॉर्मूला. ओके, सो इफ यू टेक कॉमन, इफ यू आर टेकिंग कॉमन, पाई विल कम कॉमन, दोनों में पाई है, दोनों का रेडियस भी सेम होगा क्योंकि भाई वही सेम रेडियस है ना, ये वाला पोर्शन का ही रेडियस है, तो रेडियस सेम है. तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, देखो यहाँ से L बच गया, यहाँ से L बच गया और यहाँ से एक R बच गया. तो आपका TSA ऑफ कोन का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होगा पाई R इंटू ब्रैकेट L प्लस R. द फॉर्मूला विल बी पाई R इंटू ब्रैकेट L प्लस R. Understood? So this is basically the formula for the curved surface, okay, or area, total surface area of a cylinder. Fine. So ये आपके formulas हो गए, यही दो formulas हैं. But एक और formula है जो समझाना ज़रूरी है. Like when it is a cone, तो कोन के अंदर ये हाइट है, ये रेडियस है. दिस इज द हाइट एंड दिस इज द रेडियस. अब ये L है. तो मान लो कभी R गिवन हो या H गिवन हो और L ना गिवन हो, तो या L गिवन हो, R गिवन हो, H ना गिवन हो, तो क्या करेंगे, हाउ वी विल बी सॉल्विंग. तो इन दैट केस आप देखो तो ये क्या है, एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल जैसा. ओके, तो हम यहाँ पे एक पाई L को फाइंड करने का फॉर्मूला लगाएंगे. L इज इक्वल्स टू L स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. यही होता है ना पाइथागोरस का फॉर्मूला. ओके, तब इसमें से अगर आपको L फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हैं. तो L होगा L इक्वल्स टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला होगा. ओके, अब इसके अलावा अगर भाई R L गिवन है, H गिवन है, R फाइंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर कर दो तो आज क्या मिल गया, R स्क्वायर. ओके, क्योंकि H को इधर ले आओ. सो जस्ट बाय बेसिकली एडजस्टिंग few things in the formula you can easily solve it. Understood? Fine. So this is it. Okay, here we are done with the formula. Now let's move further. If we move further, let's see that what have we studied. Curved surface area of cone, you can see here pi RL. Okay, then total surface area of cone, the formula is given here in the textbook itself. Okay, so now let's start with the example. Let's start with the example and let's see the example that how it need to be solved. Example number 4, find the curved surface area of a right circular cone whose slant height is 10 centimeter and base radius is 7 centimeter. So first of all, like I always say, what is given to you in the question, definitely write that down. If you write that down, your problem will be solved. So first of all, the curved surface area of a right circular cone whose slant height means L is 10 centimeter and the base radius R is 7. To find the curved surface area. So always write the formula, curved surface area of the cone equals to pi RL, and now put pi is 22 by 7. Until unless it is not given in the question, there are two values of pi. Like you see here, use pi equals to 3.14 or pi is 22 by 7. Either of these will be given in the question. If it is not given in the question, then what you have to use, always use 22 by 7. Understood? Always use 22 by 7. Fine. So 22 by 7, R is the radius and 10 is the length. So 7 cancel.
22 into 10, that is 220 centimeter square. You got the curved surface area of a cone. Now let's see the next question. This is the question where the slant height is missing, and this is the question carrying basically a total surface area numerical. Okay, so let's see it. Example 5. The height of a cone is 16 centimeter. Cone ki height. The height of the cone is 16 centimeter and the base radius is 12 centimeter. So h is 16, r is 12. Find the curved surface area and the total surface area. h 16 है, r है 12. तो पहली बात तो l नहीं है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया उसके बिना तो फाइंड होगा नहीं. सो l तो निकालना पड़ेगा. तो दैट फॉर्मूला विच आई टोल्ड यू, l इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. h कितना है 16 का स्क्वायर, r 12 का स्क्वायर. तो 16 का स्क्वायर आप क्या कितना होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है आप उसको लिख दीजिए. ओके राइट. आप लिखने के बाद टोटल जो सम होता है वो होता है 400. ओके इन दोनों का टोटल सम क्या होगा 400. उसका रूट करेंगे तो आंसर आएगा 20. तो L आपको क्या मिल गया 20 मिल गया. बस कर्व्ड सरफेस एरिया फाई RL वैल्यू पुट कर दीजिए. पाई यहाँ पे लेना आपको बोला है 3.14, सो यू हैव टू टेक 3.14, रेडियस 12 एंड L 20. अब मल्टीप्लाई कर दो इनको. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही है, बट मल्टीप्लिकेशन में गलती मत करना. बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है जब स्टूडेंट्स एक बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत करते हैं. तो आपको मिल जाएगा आपका एरिया. ओके वंस यू गॉट द एरिया, now you need to find the total surface area. Okay, now you need to find what the total surface area. So when you see the total surface area का फॉर्मूला आपको पहले ही क्लियर कर दिया है मैंने. आप देखिए इनकी तरह भी कर सकते हैं. इन्होंने लास्ट में कॉमन ले ही लिया है. देखो यहाँ पे कॉमन ले लिया है. ओके तो यहाँ इन्होंने क्या किया, पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर एल प्लस आर. ओके इस तरह से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं. ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा. ओके so this is how you can solve for the cone. Okay right, understood. So this is about cone. Now the next structure, let's talk about the next structure. This is a very interesting structure. Okay, it's a very interesting exercise also, right? So if we talk about this structure, surface area of a sphere. अब स्पीयर एक सर्कुलर फिगर दिखता है, बट एक्चुअली जो है स्पीयर सर्कल नहीं है. मतलब एक बॉल, मतलब एक पूरा सर्कुलर फिगर नहीं है, थोड़ा सा ओवल फिगर को हम स्पीयर कहते हैं. बट एक्चुअली ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. उसके हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होता है, सेम ही होता है. ओके तो जब हम बात करते हैं स्पीयर की, तो स्पीयर में तो देखो भाई कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसमें टोटल कुछ है नहीं. ओके तो स्पीयर का जो आप एरिया निकालोगे, तो स्पीयर का एरिया क्या होता है. अगर मैं स्पीयर को ऐसे काट दूं, ओके तो अगर मैंने काटा ये, तो ऊपर का भी एक पोर्शन होगा इस तरह से, ये दोनों जुड़ेंगे तो स्पीयर बन जाएगा. फिर एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, इधर से काटूंगा तो भी जुड़ जाएंगे. तो मतलब चार तरफ से सर्कल को, एक ये ऐसे, एक ये ऐसे, इन सब इस तरह से मैं काट के जोड़ूँ तो भी स्पीयर बन जाता है. तो एक एक क्या है, ये सर्कल है. देखो एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये एक सर्कल है. तो चार सर्कल हुए. तो TSA ऑफ स्पीयर निकालना है, तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. व्हाट इज द एरिया ऑफ वन सर्कल, यस व्हाट इज द एरिया ऑफ वन सर्कल, पाई आर स्क्वायर. और यहाँ पे कितने सर्कुलर फिगर बन रहे हैं, 4, तो 4 पाई आर स्क्वायर. दिस इज द TSA, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कह लो, ऑफ अ स्पीयर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. ओके तो स्पीयर का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. अंडरस्टूड. ओके यू कैन सी हियर 4 times the area of a circle of radius r, 4 pi r square. Understood. Now let's talk about hemisphere. Now if we talk about hemisphere, so this is a hemisphere. ओके हेमिस्फीयर मतलब स्पीयर को 2 पार्ट में काट दो. तो अब हेमिस्फीयर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगी कि हेमिस्फीयर बेसिकली स्पीयर का आधा. ओके ये दोनों को, एक क्रिकेट की बॉल को काट दो बीच से तो ऐसा दिखेगा. अब मान के चलो
ये इसका रेडियस है, ओके। अब ऐसे देखो तो ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ओके। तो जितना ये डिस्टेंस होती है उतना ही इसका रेडियस होता है। और ये भी याद रखना, कभी अगर स्फीयर का डायमीटर गिवन हो तो डायमीटर हर जगह पे सेम ही होगा उसका, ओके। सेम अगर ये हाइट गिवन हो तो आपको मतलब रेडियस ही गिवन है, ओके। तो कंफ्यूज मत होना, तब ये सोचने मत लगना कि सर यहाँ तो गिवन ही नहीं है, ओके। सब कुछ गिवन है, ठीक है, ओके। एवरीथिंग इज गिवन टू यू, फाइन। सो ये हो गया आपका रेडियस। अब हेमिस्फीयर, ऑब्वियसली बात है, स्फीयर का आधा है तो ये 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका आधा कर दोगे तो कर्व सरफेस एरिया इधर सी एस ए होगा, ठीक है, इधर टी एस ए नहीं होगा। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों, स्फीयर का फॉर्मूला क्या था, स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर है और हेमिस्फीयर उसका आधा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। बट अब सोचो कि ये एक स्फेरिकल बाउल है, अब किसी ने बोला ऊपर से कवर कर दो, तो फिर भाई ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया, तो टी एस ए तो ओपन होगा, मतलब क्लोज्ड होगा, तो क्या करेंगे, तो ऊपर का सरफेस कैसा होता है, सर्कल जैसा होता है देखने में, तो सर्कल ऐड करना पड़ेगा एरिया में। तो क्या ऐड करोगे, 2 पाई आर स्क्वायर में एक और पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, तो ये विल बिकम 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो आपको टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या मिला, 3 पाई आर स्क्वायर, ओके। अंडरस्टूड, फाइन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन है। मैंने जैसे आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था कि देखो क्यों हो रहा है फॉर्मूला में, कुछ फॉर्मूला रटना ही जरूरी नहीं होता, फॉर्मूला में कोई चीज़ हो रही है वो समझना ज़रूरी है, ओके फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स। सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। एक स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है जिसका रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करो, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, अब इसको इधर पुट कर दो, तो 4 पाई मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ओके। तो आ गया 616, ओके। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ओके। ये स्फीयर के क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका रेडियस 21 है। कर्व सरफेस 2 पाई आर स्क्वायर है, पुट करो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, मिल गया आपको। क्या मिला, देखो कैलकुलेशन करते वक्त बहुत ध्यान रखना है, ये पहले कट वट कर दिया करो, 7 3 21, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना, तो 3 पाई आर स्क्वायर 3 इंटू ये, ओके फाइन। अब इसमें क्या करेंगे, अब जस्ट इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे भी 7 3 21, ओके, फिर मल्टीप्लाई कर दो 4158। मतलब इसके न्यूमेरिकल्स जो है, इन शॉर्ट इट इज़ वेरी वेरी इजी, फाइन। अंडरस्टूड, क्लियर। So this is how you can solve all the numericals. This is very simple, okay. Now अब क्वेश्चंस को स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हो तो कंफ्यूज मत होना चाहिए कि क्वेश्चन गिवन है, द हॉलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट। एक हॉलो स्फीयर है, मतलब ये इस तरह का नहीं होता, वो इसके अंदर मोटरसाइकिल घुमाते हैं। डायमीटर 7 मीटर है, ओके राइट। एंड हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया अवेलेबल फॉर मोटरसाइकिलिस्ट। एरिया फाइंड करना है जितना में ये रोटेट करता है, तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करो तो ये आपको आंसर मिला, ठीक है, क्लियर। सो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, ओके। सो छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, उसको सॉल्व कीजिएगा, राइट। यहाँ पे हमारा ये एरिया वाला पोर्शन ख़त्म होता है, इसके बाद से जो पोर्शन स्टार्ट होगा दैट। सो प्लीज एरिया का क्वेश्चंस, सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। डू सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स एंड ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चन, ओके। एक भी कुछ नहीं छोड़ना है, याद रखना, ओके। देन एंड देन ओवरली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब जो है हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में विद वॉल्यूम, बट बार बार कह रहा हूँ एरिया पहले ख़त्म कर लेना, नहीं तो वॉल्यूम के साथ कंफ्यूज जाओगे, ओके। एंड प्लीज़ फॉर्मूला को लर्न करना शुरू कर दो ताकि मैं पूछूं तो फट से फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ओके फाइन। सो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन प्लीज़ प्रैक्टिस वेल, राइट ईच एंड एवरी फॉर्मूला 4 to 5 times, solve each and every example, and after solving the example then move on to the exercise
and solve each and every exercise questions. Okay, so let's meet up in the next lecture. Till then, stay at home. Thank you and have a nice day.